Today's topic is continuity of a function. So what is continuity of a function? So if you draw the graph of the function, means given function fx, and it can be drawn without lifting the pen from the paper. So like we have two examples, A and B. So in B, you can see, you can observe that the function graph of the function can be drawn without lifting the pen from the paper. But the graph of the function in the figure A, from this point to this point, it is smooth, but at the point 4, the graph means to draw the graph, we have to lift the pen from here to here, and now the drawing is continued. So if this type of graph is there, then we say the function is discontinuous. Function is not continuous at point 4, but here, because left hand side, right hand side, if we draw the graph, it is going smoothly from here to this point. So this graph is continuous at point 4. So we have two examples. One which is continuous, means the graph of this function can be drawn without lifting the pen from the paper. So थोड़ा slow. हाँ, कोई बात नहीं. So this graph can be drawn without lifting the pen from the paper, but this graph means the function in figure A इस पॉइंट 4 पर अगर आप ग्राफ देखो तो लेफ्ट हैंड साइड से स्मूथली यहाँ तक आ रहा है, बट पॉइंट 4 से जैसे ही आगे आप बढ़ रहे हो, इसके लिए आपके पेन उठा के आपको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा. So this type of graph is not continuous at this point 4. So the proper so this is means informal definition. A continuous graph, a continuous function is a function whose graph can be drawn without lifting the pen from the paper. So what is the mathematical definition of continuity? It is called Cauchy's definition of continuity. A real valued function means whose value is real in the real interval, defined on an open interval I, is said to be continuous at point A. So continuity may be in one interval or maybe at one point. So we are defining the definition of continuity here at particular point A. So if and only means a function is called continuous at point A if and only if for any arbitrary positive number epsilon, however small, we can define or we can find a corresponding number delta greater than 0 such that f mode of fx minus fa is less than epsilon whenever mode of x minus a is less than delta. So meaning क्या है, x means we are finding out that whether the function is continuous at point a. तो हम क्या कर रहे हैं, x को एक ही तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और x और a में अगर डिफरेंस मीन्स ये डिफरेंस कम होता जा रहा है, दिस डेल्टा इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी. सो ये डिफरेंस जितना कम हो रहा है तो एफ एक्स माइनस ए भी एप्सिलॉन से कम हो रहा है. यानी जैसे ही एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है, एफ ए की तरफ अप्रोच कर रहा है. So in this condition means whenever x minus a less than delta, we have mode of fx minus fa is less than epsilon, then we say the function fx is continuous at point A. Now the alternative definition means how to check continuity. So we will use this definition to prove that function, to check whether the function is continuous or discontinuous. So this definition is based on limit. So in the previous lecture we studied about limit, how to find out limit. So to find out the limit of any function at any point, what we do, we calculate the left hand limit and right hand limit. If both limits exist and they are equal, then we say the limit of that function exists. So we will use that definition of limit to find out the continuity of any function. So this is one alternative to check whether the function is continuous or not continuous.
So a real valued function f is said to be continuous at point A if and only limit extends to a fx exist. Clear? So you know when this limit exists. So this limit exists when the left hand limit at point A and the right hand limit at point A, they both exist and they are equal. Then we say this limit exists, and if this limit exists, then we say the function is continuous at point A. Plus, this is not only condition through which we will say that function is continuous. This function, this limit must exist and is equal to fa. So there are two conditions. Means whenever we have to check whether the function is continuous at any point, what we have to check, we have to check two things. First, this limit must exist, and second, this limit must equal to fa. Means जो भी फंक्शन है आपका एफ एक्स, उसमें जैसे ही आप ए सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो वैल्यू एफ ए दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस लिमिट. मींस या तो हम लिमिट से एफ एक्स की वैल्यू निकालें एक्स टेंड्स टू ए पर, या डायरेक्ट वैल्यू निकालें एफ ए की. दे बोथ मस्ट इक्वल. Clear? If they are equal, then we say, means first the limit must exist and this limit value is equal to fa, then we say function is continuous at point A. Otherwise the function is discontinuous at point A. So this mathematically fx is continuous at point A if the left hand limit, because when this limit will exist, when the left hand limit, right hand limit at point A, they exist, they are equal. So the left hand limit at point A is equal to right hand limit at point A, and both are equal to the functional value at A. So these three conditions must satisfy. Clear? So left hand limit at point A, how to define this? We denote this left hand limit at point A as limit extends to, sorry, this must be right hand limit. Right hand limit is limit extends to a plus fx, and left hand limit is equal to limit x tends to a minus fx. And so they both are equal, they exist, they equal, and they are equal to fa also. So this is the definition. Means this definition we will use to check for any function to be continuous. तो अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. क्या? जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी, सो जिस पॉइंट पर अगर सपोज हमें x टेंस टू a पर फंक्शन को चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट a पॉइंट पर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, a पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और a पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे. अगर ये तीनों इक्वल है, फाइनाइट है, तीनों इक्वल है प्लस फाइनाइट है, देन वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए. ठीक है? तो डेफिनेशन क्या है? एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट ए इफ द लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू एफ ए. अब लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, दोनों फाइनाइट होंगी, इक्वल होंगी, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी. यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है प्लस जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आना चाहिए? एफ ए के इक्वल आना चाहिए. सो दिस इज द डेफिनेशन और द कंडीशन. सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है. कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, एक भी कंडीशन अगर फेल होती है इन तीनों में से, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. क्लियर? नाउ कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल. तो अगर कोई ओपन इंटरवल में चेक करना है, अगर अभी हमने चेक किया कि फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं. अब हम किसी इंटरवल की बात कर रहे हैं. इंटरवल मींस इनफाइनाइट पॉइंट्स. तो ए बी ओपन इंटरवल है. सो ए बी में किस टाइप के पॉइंट्स होंगे? ऑल द रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, बिकॉज दिस इज ओपन इंटरवल. तो ए से मींस ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, ऑल रियल नंबर्स जो ए से ज्यादा हैं बी से कम है, वो इसे ओपन इंटरवल में होंगे. तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर हमने फंक्शन की पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर ली, अब किसी ओपन इंटरवल पर बात कर रहे हैं. Means function is continuous in this open interval. That means function is continuous at each point of this interval. So इस AB interval में जितने भी points हैं, उन सारे points पर अगर function continuous है तो हम बोलेंगे function is continuous in open interval AB. Clear? तो इस open interval में A तो ना A है ना B है, A और B के बीच की सारी real numbers इसमें exist करेंगे.
उन सब पर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम बोलेंगे फंक्शन इस पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूस है। नाउ कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, सो अब फर्क क्या है कि इस ए बी इंटरवल की जगह हमने क्या यूज कर लिया, क्लोज इंटरवल ए बी, मीन्स नाउ दिस सेट कंटेन्स ए एंड बी ऑल्सो, मीन्स ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी प्लस ए पॉइंट बी पॉइंट। तो अब इसमें ए और बी भी इंक्लूड हो गए। तो कब हम बोलेंगे व्हेन फंक्शन कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल ए बी, यानी ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, and function is continuous from the right at x is equal to a, that is limit extends to a plus fx, a f a के इक्वल है। क्योंकि ए बी इंटरवल की अगर आप बात करें, ए बी क्लोज इंटरवल, तो ए को इंक्लूड कर रहा है, तो राइट हैंड लिमिट तो आपको राइट से मिलेगी, तो ए प्लस एच से मिलेगी, यानी वो पॉइंट तो इस इंटरवल में है, तो उस पर हमें लिमिट चेक करनी है, यानी राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट ए वो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ए के इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट। क्योंकि इसके लेफ्ट वाला पॉइंट जो होगा, ए के पीछे वाला जो पॉइंट होगा वो a माइनस एच होगा, बट a माइनस एच तो इस इंटरवल में नहीं है, तो हमें वो चेक नहीं करना है। सिमिलरली अगर हम b पॉइंट की बात करते हैं, तो b पॉइंट के पहले वाला पॉइंट यानी b माइनस एच तो इस इंटरवल में होगा, तो उस पर तो हमें लिमिट की वैल्यू चेक करनी है। तो वो कौन सी लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट b। लेकिन राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट b क्या होगी, b प्लस एच होगा, वो तो इस इंटरवल के बाहर होगा, तो वो हमें चेक नहीं करना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, fx is continuous from the left at x is equal to b. Clear? So then this limit, left hand limit at b point is equal to fb. तो हमने क्या बोला कि when means हमारा इंटरवल हो गया a b, हम बोल रहे हैं the function is continuous in this closed interval when it is continuous in an open interval ab, means ab के बीच में जितने पॉइंट है उन सब पर कंटिन्यूस होना चाहिए, प्लस the function is so the continuity in closed interval means the function is continuous in the open interval ab, means at all points between a and b, plus function is continuous from the right at point a and function is continuous from the left at point b. So अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, then we say the function is continuous in this closed interval. Clear? Now this is geometrical interpretation of the continuity. So like I told you कि when function, अगर हम function का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर वो स्मूथली विदाउट लिफ्टिंग द पेन ड्रॉ हो सकता है उस पॉइंट पर, यानी अगर हम ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, सो ए पॉइंट के लेफ्ट से अगर आप स्टार्ट करते हो और राइट में स्मूथली आप स्विच करते हो विदाउट लिफ्टिंग द पेन, देन दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? मीन्स अगर मैं एक फंक्शन ग्राफ एक ड्रॉ करता हूं, सपोज इस तरह से, तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर तो फंक्शन कंटिन्यूस है, बिकॉज हम लेफ्ट से आ रहे हैं और स्मूथली आगे प्रोसीड कर रहे हैं। बट अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि लेफ्ट से आते ही आपने क्या किया, पेन उठा के फिर आपको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। बाकी सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है, यहाँ पर भी कंटिन्यूस है, यहाँ पर भी कंटिन्यूस है, यहाँ पर भी कंटिन्यूस है, बट इस पॉइंट पर वो कंटिन्यूस नहीं है। सो नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूटी। सो आपको पता है व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट अगर तीनों इक्वल हैं, देन वी से फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। नाउ discontinuity means a function which is not continuous at point A is said to be discontinuous at point A. So a function which is not continuous at point A is said to be discontinuous at point. तो या तो किसी भी पॉइंट पर फंक्शन या तो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो अगर वो तीनों डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे कंटिन्यूस है, नहीं करेगा, एक भी कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो वी से द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, दैट मींस डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। सो वेयर A is called point of discontinuity of f. Clear? A function which is discontinuous even at single point of an interval is said to be discontinuous in the interval. तो अगर हम किसी इंटरवल की बात करें तो इंटरवल पे कंटिन्यूस तभी होगा जब इंटरवल के सारे पॉइंट पर वो कंटिन्यूस होगा। किसी एक पॉइंट पर भी अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो हम बोलेंगे द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस इन द इंटरवल।
function is can be discontinuous at point x is equal to a because of any of the following reason. या तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या दोनों इक्वल नहीं है, या फंक्शन इज नॉट डिफाइंड x इज इक्वल टू a. सो देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्योंकि कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए और तीनों इक्वल होना चाहिए. तो कितनी एक भी कंडीशन अगर डिस्क्वालीफाई होगी, फेल होगी, तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस है. लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करिए तो डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो इक्वल नहीं होगा, दोनों एग्जिस्ट नहीं करिए तो डिसकंटिन्यूअस होगा, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं बट इक्वल नहीं है तो भी डिसकंटिन्यूअस होगा, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों इक्वल है बट फंक्शन वैल्यू की अगर इक्वल नहीं है तो भी डिसकंटिन्यूअस होगा, या फंक्शन वैल्यू ही अगर डिफाइंड नहीं है तो भी डिसकंटिन्यूअस होगा. सो कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं थ्रू विच वी कैन चेक दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस. सो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी नाउ, क्योंकि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं तो इन पॉसिबिलिटी के बेसिस पर वी डिफाइन दैट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसका टाइप क्या है, क्या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट वो इक्वल नहीं है, क्या वो फंक्शन वैल्यू पे इक्वल नहीं है. सो इन कंडीशंस पर बेस्ड हमारी क्या है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. तो सो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसमें से कितनी कंडीशंस हैं, अगर एक वो कंडीशनल है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या फिर एग्जिस्ट कर रही है वो इक्वल नहीं है आपस में, या वो फंक्शन वैल्यू को इक्वल नहीं है, तो उस पर बेस्ड है हमारी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है. सो फर्स्ट टाइप इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. So a function is said to have removable discontinuity at point A if limit exist, यानी इस लिमिट को हम बोल रहे हैं एग्जिस्ट, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही हैं और दोनों इक्वल भी हैं, बट इट इज नॉट इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट ए. क्लियर? मींस क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट ए, राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट ए, दे बोथ एग्जिस्ट एंड इक्वल. यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ एक्स एग्जिस्ट, बट both are not equal to fa. They are equal to each other but they are not equal to the functional value. Then we say the function is discontinuous and this discontinuity is of removable type. Clear? इसको हम क्या बोलेंगे, यानी दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, इक्वल भी हैं, बट वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो हमको उसको क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. जैसे इक्वेशन है, एग्जांपल है. सो क्या बोले, क्योंकि रिमूवेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि केवल दोनों लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही हैं, इक्वल भी हैं, वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं. यानी ओरिजिनली जो भी एफ ए की वैल्यू थी उसको हम कैंसिल करके लिख दे, नई वैल्यू डिफाइन कर देते हैं कि एफ ए की वैल्यू सपोज जो है, जो इन दोनों की इक्वल वैल्यू है वो है, तो हम इसको रीडिफाइन करके फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हैं. So a function can be made continuous by assigning some suitable value to a such that limit extends to a fx is equal to fa. For example, इस केस में अगर हम देखें x is equal, so this is function definition, so it is function value is 2 when x is between 0 and 1 and it is 1 when x is equal to 1 by 2. so इसमें अगर हम 1 by 2 पर, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है और बाकी सारे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो बाकी सारे पॉइंट पर तो ये कंटिन्यूअस है, बट ये 1 by 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है. क्यों नहीं है बताइए, क्योंकि अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट देखें एट पॉइंट 1 by 2, तो 1 by 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, a minus h. So a is 1 by 2, h tends to 0, so f 1 by 2 minus this h, and this h is almost 0, so 1 by 2 minus a small positive quantity, that means it is going, it is not 1 by 2, the point is not 1 by 2, और जब point 1 by 2 नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या है फंक्शन की, 2. सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट 1 by 2 देखें, so it is f of a plus h and h tends to 0, so 1 by 2 plus h, so it is slightly greater than 1 by 2, so the functional value is again 2, क्योंकि 1 by 2 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, अदरवाइज 1 by 2 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2. सो दिस इज 2, दिस इज 2, बोथ आर इक्वल टू 2, बट अगर हम फंक्शन वैल्यू देखें एट 1 by 2, वो कितनी गिवन है, 1, सो दिस इज 1. सो ये दोनों एग्जिस्ट तो कर रही हैं लिमिट,
और 2 के इक्वल भी है बट वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस मींस दिस इज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 1/2. सो बट किस टाइप की रिमूवेबिलिटी डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल टाइप की. क्यों? क्योंकि अगर हम f ऑफ 1/2 को 2 डिफाइन कर दें, जैसे यहाँ x इज इक्वल टू 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू 1 दी है, अगर सपोज हम लिख देते हैं कि f ऑफ 1/2 इज 2, हम इस डेफिनेशन को डिस्कार्ड करके हम एक नई डेफिनेशन दे देते हैं कि x इज इक्वल टू 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो अब वो कंटिन्यूअस बन जाएगा. So this type of discontinuity is called removable discontinuity. The function is discontinuous at the point 1/2. Next, discontinuity of this first kind. So first kind में function is said to have discontinuity of first kind at point A if both limits exist but are not equal. पहले वाले केस में क्या था? दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी और इक्वल थी, बट वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं थी. दूसरा केस क्या है? दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही हैं बट वो आपस में इक्वल नहीं है. क्लियर? दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट, बट दे आर नॉट इक्वल. क्लियर? सो इक्वल नहीं है, दैट मींस f ऑफ a माइनस a0 एग्जिस्ट कर रही है, f ऑफ a प्लस 0 एग्जिस्ट कर रही है, बट दे आर नॉट इक्वल. तो दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है. तो यानी हम इसको fa से कंपेयर करें, बट अगर आप fa से कंपेयर नहीं करो, आप सिंपली लिखोगे f ऑफ a माइनस 0 a माइनस h इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a प्लस h. बट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए. देखिए कंडीशन क्या है? दोनों एग्जिस्ट का मतलब f ऑफ a माइनस h भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब फाइनाइट होगी. f ऑफ a प्लस h भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी फाइनाइट होगी, बट वो दोनों इक्वल नहीं है. तो इस केस में हम क्या बोलते हैं? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड दिस डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड ऑफ फर्स्ट काइंड. अब वो fa के इक्वल है कि नहीं है वो तो हमें चेक ही नहीं करना, हमें केवल क्या चेक करना है? दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट वो इक्वल नहीं है. क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज of first kind. तो इसका एग्जांपल देखिए, 0 से 1/2 के बीच में जितने पॉइंट्स हैं, फंक्शन की वैल्यू 1/2 है, 1/2 पर 0 है और 1/2 से 1 पर माइनस 1/2 है. क्लियर? सो अगर हम 1/2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, सो लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 1/2 माइनस h क्या होगी? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1/2 माइनस h इसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1/2. सो 1/2 से कुछ कम, तो 1/2 से जैसे ही कम गया तो फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली लगेगी, यानी वैल्यू क्या होगी? 1/2. और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं 1/2 प्लस 0 या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1/2 प्लस h, यानी 1/2 से थोड़ा सा आगे, तो ये वाली डेफिनेशन काम करेगी. तो वैल्यू क्या होगी? 1/2. तो वहां सॉरी माइनस 1/2, तो ये माइनस 1/2 हो गए. तो दोनों एग्जिस्ट कर रही है, मतलब दोनों फाइनाइट है बट दोनों इक्वल नहीं है. एक 1/2 है, एक माइनस 1/2 है. तो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी. बोथ लिमिट एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल. अब वो फंक्शन वैल्यू पे इक्वल है कि नहीं है, ये हमें कंपेयर नहीं करना है, ये हमें चेक नहीं करना है. नाउ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड. A function is said to have discontinuity of second kind at a point A if none of the limit exist at A. तो पहला केस क्या था? जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, इक्वल भी हैं, लेकिन फंक्शन वैल्यू की इक्वल नहीं है. दूसरा, दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं बट इक्वल नहीं है आपस में. तीसरा, दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, अभी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, तो हमें कंपेयर ही नहीं करना कि वो इक्वल है या नहीं है. हमें केवल क्या चेक करना है कि वो दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए. So the point is said to be point of discontinuity of the second kind from the left or from the right according to f of a minus 0 or f of a plus 0 does not exist. Clear? So consider the function on example भी दिया है, fx is equal to cos of pi by x defined in this interval. Graph of the function is this. So अगर हम 0 पर बात करें at the point 0, so both limit x tends to 0 minus cos pi by x and limit x tends to 0 plus cos pi by x. पूरे इंटरवल में डेफिनेशन तो सेम है. तो 0 पर अगर आप चेक करोगे तो 0 माइनस, यानी यहाँ पर आप लिखोगे 0 माइनस h.
सो 0 माइनस एच, तो कॉस पाई बाय माइनस एच हो गया, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस पाई बाय एच हो गया, और एच टेंस टू 0 है, सो कॉस ऑफ इनफाइनाइट, तो वो ऑसिलेटरी होगा क्योंकि कॉस थीटा जो है -1 और 1 के बीच में रहता है, बट वो एंगल फिक्स होना चाहिए, बट एंगल फिक्स नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं वो वैल्यू क्या है? सो दिस इज नॉट मींस फिक्स्ड वैल्यू, तो वो ऑसिलेट करेगी। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इज cos पाई बाय 0 प्लस एच, सो cos ऑफ पाई बाय एच, अगेन h टेंस टू 0 पर क्या हो जाएगा, वो ऑसिलेट करेगी। तो दोनों की दोनों लिमिट है जो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों फिक्स्ड नहीं है। सो x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड, यानी दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट ना राइट हैंड लिमिट। मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी, function is said to have mixed discontinuity at a point A if f has a discontinuity of second kind on one side of A and on the other side discontinuity of the first kind or may be continuous. Means a mixed discontinuity है, that means यानी एक किसी जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है उस पर एक साइड पर, मतलब या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पर डिस्कंटिन्यूटी सेकंड काइंड की है, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और दूसरी वाली जो है वो क्या है, या तो फर्स्ट काइंड की डिस्कंटिन्यूटी है या कंटिन्यूअस है, मतलब हो सकता है वो एग्जिस्ट करे, हो सकता है वो फिक्स्ड भी हो, फंक्शन वैल्यू के इक्वल भी हो, बट वो इसके इक्वल नहीं होगी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो लिमिट की बात कर रहे हैं, तो एक साइड पर तो वो सेकंड काइंड मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एक एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर? सो अगर ये एग्जांपल देखें, fx is equal to e to the power 1 by x sin 1 by x, so limit x tends to 0 minus, so 0 minus, so 0 minus h, so e to the power minus 1 by h, h tends to 0 is 1, and sin minus 1 by h, so तो देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जैसे ही हम 0 माइनस की बात करते हैं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1 बाय 0 माइनस h, सो ये क्या बना, 0 टू द पावर माइनस 1 बाय h, तो जैसे ही h टेंस टू 0 करोगे, तो h टेंस टू 0 मतलब ये 1 बाय 0 यानी इनफाइनाइट हो गया, तो फंक्शन क्या बना, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, और e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट यानी 1 बाय इनफाइनाइट, और 1 बाय इनफाइनाइट जो होगा यानी 0 हो गया ये फंक्शन। तो केवल फर्स्ट पार्ट क्या हो गया 0, और इनटू साइन 1 बाय x जो चल रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 1 बाय माइनस एच, और s टेंस टू 0 जैसे ही करेंगे तो साइन ऑफ माइनस इनफाइनाइट, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑसिलेट करेगी माइनस बिटवीन -1 एंड +1, तो ये वाली वैल्यू जो भी आएगी हमें पता है -1 और 1 के बीच में आएगी, बट वो फिक्स क्या होगी ये हमें नहीं पता, बट क्योंकि e टू द पावर 1 बाय x लेफ्ट हैंड लिमिट पर क्या है, वो क्या कर रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 इंटू समथिंग वो क्या हो जाएगा, टोटल 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो ये क्या फंक्शन हो जाएगा, 1 बाय 0 प्लस एच, 0 प्लस यानी ये हो जाएगा e टू द पावर 1 बाय एच, सो जैसे ही h की जगह 0 रखोगे तो e टू द पावर वो प्लस इनफाइनाइट बनेगा, और e टू द पावर प्लस इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट इनटू ऑसिलेटरी वैल्यू, ये वैल्यू है -1 और 1 के बीच में, तो इनफाइनाइट इनटू समथिंग यानी वो इनफाइनाइट आ जाएगी, तो इनफाइनाइट आएगी दैट मींस इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, x is equal to, therefore function has a discontinuity of the first kind from the left and discontinuity of the second kind from the right, so function has a mixed discontinuity. So infinite discontinuity का कोई means इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मींस या तो लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट प्लस माइनस इनफाइनाइट हो रही है, या राइट हैंड लिमिट प्लस माइनस इनफाइनाइट आ रही है, दोनों में से अगर एक भी आ रही है तो उसको मैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो टाइप्स क्या हुए, फर्स्ट रिमूवेबल, जिसमें दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, इक्वल भी होंगी बट फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, दोनों लिमिट जो है इक्वल एग्जिस्ट तो कर रही है बट इक्वल नहीं है। सेकेंड काइंड में दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है।
मिक्स डिसकंटिन्यूटी में एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एक एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इनफाइनाइट में अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों में से कोई एक अगर प्लस माइनस इनफाइनाइट आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। सो discontinuity of a function वही है, a function is not continuous at a point, then it is said to be discontinuous at that point, and that point it's called point of discontinuity। अब किस किस टाइप की है, वो ये रिमूवेबल है, तो ग्राफ से बता रहे हैं हम। तो रिमूवेबल कब है, जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी और इक्वल होंगे, बट नॉट इक्वल टू एफ ए, ये कंडीशन है। तो अगर हम ग्राफ से देखें तो दो टाइप हो सकते हैं इसमें। एक क्या हो सकता है, देखिए इस ग्राफ में लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ तक जा रहे हैं और राइट हैंड साइड से यहाँ पर इस पॉइंट पर जा रहे हैं, तो दोनों इस पॉइंट पर तो पहुंच रहे हैं, बट x इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो यहाँ है, यानी यहाँ छोड़कर वो यहाँ है। सो दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल है क्योंकि दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों एक ही जगह जा रही हैं, दोनों इक्वल भी हैं, बट फंक्शन की वैल्यू की इक्वल नहीं है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पहुंच रहे हैं, राइट हैंड साइड से यहाँ पहुंच रहे हैं, तो दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों एक ही साइड अप्रोच कर रही हैं, बट फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है। हियर एफ ए इज नॉट डिफाइंड, सो दिस इज मिसिंग पॉइंट टाइप। तो रिमूवेबल में दो टाइप हो गए, एक आइसोलेटेड टाइप, एक मिसिंग टाइप। क्योंकि रिमूवेबल में क्या है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, इक्वल भी हैं, बट फंक्शन वैल्यू की इक्वल नहीं है। तो एक तो ये हो गया कि फंक्शन वैल्यू अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट। और एक वो है जहां पर फंक्शन वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, जैसे 1/x की बात करें तो 1/x पर अगर हम जीरो की बात है, x टेंस टू जीरो, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि f ऑफ a डिफाइंड ही नहीं है, f ऑफ जीरो डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर। और मिसिंग टाइप क्या होगा, मींस यही जिसमें फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पर, यहाँ पर डिफाइंड तो है बट वो कुछ और है। क्लियर, ये पॉइंट है। सो रिमूवल में दो टाइप हो गए, एक आइसोलेटेड पॉइंट एंड मिसिंग पॉइंट टाइप। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है बट इक्वल नहीं है, यानी लिमिट ये भी एग्जिस्ट कर रही है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है, बट दे आर नॉट इक्वल। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ तक जा रही है, इस पॉइंट तक जा रही है, फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रही है। राइट हैंड लिमिट यहाँ से यहाँ तक जा रही है, वो भी एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट, बट वो इक्वल नहीं है, एक यहाँ अप्रोच कर रही है, एक यहाँ अप्रोच कर रही है। सो दिस इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ये भी वही है, लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ जा रही है, राइट हैंड साइड से यहाँ जा रही है, एक फंक्शन के इक्वल है। इस केस में ये फंक्शन के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इस केस में लेफ्ट हैंड वाली इक्वल है, राइट हैंड साइड वाली इक्वल नहीं है। तो दोनों लेकिन डिफरेंट है, इसलिए हमें फंक्शन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। नाउ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड, जहाँ क्या है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, और राइट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये भी केस हो सकता है, एक प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, दूसरी माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो दोनों टाइप के हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड, क्योंकि दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, एक साइड पर सेकंड काइंड की है, एक साइड पर फर्स्ट काइंड की, दैट मींस एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों में से कम एक प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट अप्रोच कर रही है, तो दिस इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवल में जैसे मैंने दो टाइप बताए, एक तो मिसिंग पॉइंट जिसमें फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पर। अगर हम इसकी बात करें तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 4 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, अगर एक्स 4 नहीं है तो हमें ये डेफिनेशन यूज करना है। तो राइट हैंड लिमिट पर एफ एक्स राइट हैंड लिमिट एट 4 वो ये फंक्शन काम करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 4 तो भी ये फंक्शन काम करेगा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 4। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आएगी, राइट हैंड लिमिट भी वही आएगी, दोनों इक्वल भी हैं, बट फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 4 पर क्या है वो तो हमें गिवन ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों तो 8 आएंगी, बट क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है उस पॉइंट पर, तो हम चेक कैसे करेंगे, तो दिस इज मिसिंग पॉइंट टाइप। आइसोलेटेड में देखिए, इस केस में हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 4 पर डिफाइन कर दिया फंक्शन 9, तो इस पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो 8 आएंगी, बट x इज इक्वल टू 4 पर तो वो 9 हो रही है, तो एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइट फंक्शन वैल्यू, बट इक्वल नहीं है। सो दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट। इररिमूवेबल, जो रिमूव नहीं हो सकती, तो लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, इररिमूवेबल। रिमूवेबल क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। रिमूवेबल क्या होता है, जब लिमिट एट पॉइंट ए एफ एक्स एग्जिस्ट,
बट अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम उसको इररिमूवेबल लेंगे। तो लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी? जब या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या दोनों ही एग्जिस्ट ना करे। नेक्स्ट, तो दिस इज फाइनाइट टाइप, मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं बट इक्वल नहीं है। ये भी इररिमूवेबल का टाइप है, क्योंकि हमें क्या, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों इक्वल हो। तो या तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं या फिर वो इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट टाइप। दोनों एग्जिस्ट तो कर रही है बट इक्वल नहीं है। जैसे ये इक्वेशन है, fx is equal to mod x minus 3 at x is equal to 3। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? x is greater than or equal to 3 का, क्योंकि mod x की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज आइदर प्लस x और माइनस x। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्लस x होता है, और लेस देन 0 है अगर x तो इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस x होती है। तो सिमिलरली, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर तो x माइनस 3 बाय मोड x बाय x माइनस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 3। और अगर x लेस देन 3 है तो ये माइनस x माइनस 3 हो जाएगी मोड की वैल्यू, इस मोड की वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर 1 आ जाएगी, और लेस देन 3 पर माइनस 1 आ जाएगी। क्लियर? तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे। 3 पर अगर हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो 1 आएगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो माइनस 1 आएगी। तो दोनों एग्जिस्ट तो कर रही है, फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है, इसलिए फाइनाइट टाइप पर इररिमूवेबल। फाइनाइट टाइप इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट टाइप यानी किसी एक पॉइंट पर इनफाइनाइट हो रही है। तो अगर 2 10x है फंक्शन, पाई बाय 2 पर अगर हम चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 2 10 a माइनस h होता है, यानी पाई बाय 2 माइनस h हो गया। तो 2 cot h आ गया। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 2 cot h, एंड 2 h टेंड्स टू 0 है तो 2 cot 0 की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। 2 टू द पावर इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट। राइट हैंड लिमिट पाई बाय 2 प्लस h, तो 10 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cot थीटा। तो h टेंड्स टू 0 पर ये cot 0 क्या हो जाएगा? माइनस प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस ऑलरेडी है, इसलिए 2 टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, तो 0 हो रहा है। तो यानी एक 0 हो रही है, एक इनफाइनाइट हो रही है। तो एक इनफाइनाइट की तरफ जा रही है तो उसे इनफाइनाइट टाइप बोलते हैं। ऑसिलेटरी वही, जब दो वैल्यू के बीच मींस हम फिक्स वैल्यू ना बता पाए, बस वो ऑसिलेट कर रही है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 by x। लेफ्ट हैंड लिमिट भी ऑसिलेट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी ऑसिलेट कर रही है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 by h हमें नहीं पता क्या होता है। हमें केवल रेंज पता है, इट इज ऑलवेज बिटवीन -1 and +1, बट व्हाट इज द फिक्स वैल्यू वी कैन नॉट आंसर इट। सो दीज आर सम क्वेश्चंस। अगर ये फंक्शन है एट x टेंड्स टू 0, फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको चेक करना है तो आपको करना क्या है? उसकी लिमिट वैल्यू एट द पॉइंट 0 वो चेक करना है कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। So limit x tends to 0, 1 plus x, this 1 plus x, 1 plus x minus e to the power x क्या है? क्योंकि अगर डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट 0 by 0 फॉर्म, मींस इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में हम क्या करते हैं? या तो एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, तो हमें e to the power x का सीरीज पता है। क्लियर? सो 1 plus x minus e to the, डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 by 0 फॉर्म बनेगा, which is indeterminate form। तो उस केस में we have a lot of options, एल हॉस्पिटल रूल, एक्सपेंशन, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, जो भी हमें सुटेबल होगा। तो अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो e to the power x का जो एक्सपेंशन है वो ये सीरीज है। -1 minus cos 2x को क्या ले सकते हैं? 2 sin square x। तो 1 plus x, 1 प्लस एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 प्लस एक्स, वही वाला 1 प्लस एक्स बचा। ये सीरीज -2 sin स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है। सो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। सो अब हम एक्स टेंस टू 0 अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बचेगा? -1/2, और इधर एक्स टेंस टू 0 पर ये क्या हो जाएगा? sin x by x into sin x by x। सो दिस इज 1, दिस इज 1, सो -2। सो दिस -5/2 is the limit। so this limit exists। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट फंक्शन वैल्यू, तो अगर x इज इक्वल टू 0 आप लिखेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस e टू द पावर 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस cos 2 0 1। सो दिस इज 1 माइनस 1 0। सो दिस इज 0 by 0 टाइप। तो f ऑफ लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है -1/2 दोनों, बट
फंक्शन वैल्यू 0 पर डिफाइन नहीं है इस केस में। Next, 3 to the power x minus 1 square sin x log 1 plus x is continuous, then find f0. हमें क्या दिया है कि if this function is continuous at point 0, then what is the f0 value? तो कैसे चेक करोगे कब फंक्शन मींस हमें गिवन है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट 0, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी। तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी और इक्वल भी होंगी, बट फंक्शन वैल्यू के इक्वल होंगी क्योंकि गिवन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हमें f0 की वैल्यू बतानी है। तो दोनों लिमिट आप चेक करना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आनी चाहिए, और जो इक्वल आएंगी तो उनकी जो वैल्यू होगी वो f0 की वैल्यू होगी, देन ओनली दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये भी क्वेश्चन है, इस कंटिन्यूअस कब हमें x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इस फंक्शन में मिलेगी बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 2, और फंक्शन वैल्यू क्या है 3/5, तो दोनों लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट they both must exist plus equal to 3/5, then only this function is continuous. इसमें भी हमें क्या बताना है, fx की कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, उसका टाइप क्या है, x इज इक्वल टू -2 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो यहाँ से मिल जाएगी, पर फंक्शन x इज इक्वल टू -2 पर डिफाइंड ही नहीं है, तो डिफाइंड नहीं है तो यानी ये रिमूवेबल, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, और कौन सी होगी, मिसिंग पॉइंट पर टाइप। तो ये क्वेश्चन किया भी है, 3x minus 1 whole square sin x log 1 plus x. So हमने क्या किया, x यहाँ x स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर भी कर दिया x का डिवाइड। So limit x tends to 0 sin x by x हो गया, limit x tends to 0 log 1 plus x by x हो गया, और ये हो गया 3x minus 1 x square। तो ये तो आपको पता है, this limit is 1, limit x tends to 0 sin x by x is 1, एंड लिमिट log 1 plus x by x is also 1। ये हमने लिमिट में क्वेश्चंस किए थे, तो डायरेक्ट में वहां से वैल्यू रखिए 1 into 1। अपर साइड अगर न्यूमरेटर देखोगे तो 3x minus 1, तो 3 to the power 0 means 1, 1 minus 1 0, and this x is also 0, so numerator and denominator both are 0, so it is 0 by 0 form, और 0 by 0 form के लिए हम क्या करते हैं, we use L'Hospital rule। सो L'Hospital रूल में हम ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। सो 3 to the power x डिफरेंशिएशन 3 to the power x log 3, एंड x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दीजिए, सो log 3 स्क्वायर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज फंक्शन वैल्यू, यानी हमें यही क्वेश्चन था, इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन व्हाट इज f0। सो क्योंकि लिमिट दोनों की क्या है, दोनों लिमिट क्या आ रही है, log 3 स्क्वायर आ रही है, तो log 3 स्क्वायर दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल भी आ रही है, तो वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो दिस f0 मस्ट बी log 3 स्क्वायर। क्या हुआ, चलो कहाँ प्रपोजल, तो अभी लंच के बाद सुनो, सुबह सुबह फालतू दो क्यों, तो फिर सुनो मंडे की बात करें, इतनी जल्दी मत करो, बात मान जाए, उसको बड़बड़ी भी पसंद है, तो देखो या तो लंच के बाद चलो, सुबह सुबह मत जाओ, दिमाग खराब मत करो, या फिर मंडे को चलो तसल्ली से, तो पढ़ तो यार, कुछ भी गलती होगी यार, अरे भैया ऊपर भी लिख दिया, नहीं वो ठीक है, लेकिन वो बताएगा अरे तुम लोग आए इतनी जल्दी क्या है, एक बार मुझे भी तो पढ़ने दो। इसे भी लिख दिया तुमने तो, कहाँ से कॉपी किया था, तुम छोड़, तुम जा, तो बैठो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, नहीं मैं जा रहा हूँ, तुम डिफरेंशियल इक्वेशन में तुमको क्या पता, हम जवाब दे देंगे, तो देख लो, तो तुम्हारी नहीं यार, तो हमें यार मुझे लगता है सुबह सुबह नहीं जाना चाहिए, तो 11:30 हो गए, पौने 10 के आए हुए किधर से भी चले जाएंगे, आओ काम वाले कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे, विदेशियों से बात करना है मुझे, मैं एक्चुअली अगली वीक ही नहीं, चलो ठीक है, तुम मिल
तुम मिलाओ, मैं तो अब यार लंच के बाद ही अगर मेरा तो प्लान है, अब तुम देख लो। तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं? So इस फंक्शन को हमें चेक करना है। इस फंक्शन, इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f0? तो फंक्शन हमें गिवन है, कंटिन्यूअस है, तो हम लिमिट चेक कर लेते हैं कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी x टेंड्स टू 0 पर, और फंक्शन वैल्यू के इक्वल होगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हम जब चेक करेंगे तो 3x माइनस 1 बाय मीन्स ये फंक्शन है, हमने क्या किया, x का डिवाइड यहाँ किया, x का डिवाइड यहाँ किया, और x स्क्वायर का ऊपर भी डिवाइड कर दिया, इक्विवेलेंट है फंक्शन। तो limit x tends to 0 sin x by x into log x tends to 0 log 1 plus x by x। तो ये लिमिट क्या है, ये 1 है, और ये लिमिट भी 1 होती है। ये हमने लिमिट में क्वेश्चंस किए थे। लिमिट x tends to 0 sin x by x भी 1 होता है, और लिमिट x tends to 0 log 1 plus x by x भी 0 होता है, सॉरी 1 होता है। सो 1 into 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 3x माइनस 1 बाय x होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 टू द पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, एंड x डिनोमिनेटर इज आल्सो 1, सॉरी 0, सो इट इज 0 बाय 0 फॉर्म। सो 0 बाय 0 फॉर्म के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। सो 3x, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, सो 3x log 3 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, सो 3 टू द पावर x log 3 बाय 1 स्क्वायर। अब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 रख दीजिए, सो 3 टू द पावर 0 मींस 1 log 3 स्क्वायर, सो दिस इज log 3 स्क्वायर। सो लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, log 3 स्क्वायर। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू f0 मींस फंक्शन वैल्यू एट द पॉइंट 0। सो f0 की वैल्यू क्या होगी, log 3 स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सो whether the function is continuous or not at the point 2। so 2 पॉइंट पर हमें चेक करना है, तो 2 पॉइंट पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू चेक करनी है, तीनों इक्वल होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो व्हेन फंक्शन इज नॉट 2 तो डेफिनेशन ये होगी, और फंक्शन इज 2 तो वैल्यू क्या है 3/5। सो 2 माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 पॉइंट। तो हमने क्या किया, जब 2 नहीं है 2 माइनस एच होगा, तो यानी ये डेफिनेशन लगेगी, तो इसमें हमने 2 माइनस एच सब्सटीट्यूट किया और सॉल्व किया -3/5। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो भी यही डेफिनेशन यूज होगी, क्योंकि 2 प्लस एच पर ये वाला फंक्शन काम करेगा। सो दिस इज 3/5। सो दोनों एग्जिस्ट कर रही है, दोनों फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रही है, बट दे आर नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन कंटिन्यूटी का टाइप मींस अगर कंटिन्यूअस है ठीक है, अदरवाइज अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप का है, x इज इक्वल टू -2। तो व्हेन x इज -2, सो fx की वैल्यू ये है, इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो क्या मिल रहा है x-4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे पॉइंट -2 पर, तो -6 आएगा, राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगा, -6 आएगा, दोनों इक्वल है, फाइनाइट है, सो लिमिट एग्जिस्ट करिए। बट फंक्शन वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है, सो फंक्शन वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो हम कंपेयर किससे करेंगे, सो f-2 हमारे पास नहीं है, सो दिस इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ऐसे ही ये क्वेश्चन है। सो इस केस में भी क्या है, शो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 जब हम रखेंगे तो क्या बन जाएगा 0/0 फॉर्म, तो वो डिफाइंड ही नहीं है। फिर दिस फंक्शन इज डिफाइंड इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन वैल्यू तो 2 है, तो f1 तो हमें गिवन है 2। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट 1, तो 1 + 0 यानी
लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट फंक्शन ऑफ 1 plus h. So function 1 plus h and h is very small positive quantity. So जब x is not equal to 1, 1 से कम या ज्यादा होगा तो हमारा डेफिनेशन ये लगेगा. So 1 plus h is greater than 1, तो हमारा ये वाला डेफिनेशन काम करेगा. तो x स्क्वायर दे देता है. फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? x स्क्वायर. So f of 1 plus h क्या होगा? 1 plus h square. Limit h tends to 0. So this is 1, and left hand limit f of 1 minus 0, limit h tends to 0, f of 1 minus h. So limit h tends to 0, 1 minus h square. तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों इक्वल भी हैं, बट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2. So 2 means f of 1 is not equal to the limit value of function at 1. So discontinuity है, और discontinuity किस टाइप की है? रिमूवेबल है, क्योंकि फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं है. So it is not continuous. x is equal to 1. इसमें चेक करना है whether function is continuous at x is equal to 0 or not. तो वही आपको करना है. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है. ये सारे लिमिट के क्वेश्चंस हैं. तो लिमिट दोनों से चेक किया आपने. एक 2, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 रहा है, दोनों एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल भी है. और f of 0 भी 2 गिवन है आपको. सो तीनों इक्वल है, इसलिए कंटिन्यूअस है. इस केस में भी वही, हमें किस पॉइंट पर चेक करना है? ए पर. तो ए पॉइंट पर लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकालिए. सो राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट h टेंड्स टू 0, f of a plus h. f of a plus h, तो a से ज्यादा है, इससे ज्यादा यानी ये वाली डेफिनेशन लगेगी. सो a माइनस ए स्क्वायर बाय a प्लस एच. आप लिमिट लगा दीजिए. सो h टेंड्स टू 0 पर ये हो जाएगा a माइनस ए स्क्वायर बाय a, यानी a माइनस a यानी 0. ऐसी लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस 0 यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a माइनस h. सो a माइनस h, सो a माइनस एच स्क्वायर बाय a माइनस a. तो इसको सिंप्लीफाई किया तो वो भी क्या आ रहा है? 0. तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों क्या है? इक्वल है. अब फंक्शन की वैल्यू दे देते हैं. x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0. तो वो 0 के भी इक्वल है, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा. ऐसे ये सारे क्वेश्चंस भी हैं. आप ट्राई कीजिए, कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे. केवल लिमिट चेक करनी है आपको. किसी भी फंक्शन पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों हमें चेक करना है कि दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होना चाहिए, और फंक्शन वैल्यू के भी इक्वल होना चाहिए. तो लिमिट में और कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है? एक फंक्शन वैल्यू. लिमिट अगर किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है, दैट मींस लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, इक्वल भी होगी. क्लियर? दोनों इक्वल भी होंगी. तो एक बस. और लेकिन अब लिमिट में और कंटिन्यूटी में क्या होगा? कंटिन्यूटी में वो वैल्यू फंक्शन वैल्यू के इक्वल भी होना चाहिए उस पॉइंट पर. तो ये एडिशनल स्टेप है. बाकी तो लिमिट का ही क्वेश्चन है. क्लियर? तो यही सारे देखिए कि ये क्वेश्चन है. सो काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, fx की वैल्यू ये है. किस पॉइंट पर हमें चेक करना है? x इज इक्वल टू 0 पर. तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट पॉसिबल द ओरिजिन. तो x इज इक्वल टू 0 पर हम चेक कर लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि 0 पर चेक करें. a माइनस h की जगह क्या हो गया? 0 माइनस h, यानी f ऑफ माइनस h. तो f ऑफ माइनस h की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि h क्या है? f ऑफ माइनस h यानी x इज नॉट इक्वल टू 0 वाला केस है h. क्लियर? तो डेफिनेशन कौन सी लगेगी? ये वाली लगेगी. तो ये वाली वैल्यू में माइनस एच माइनस माइनस एच, एक्स की जगह हमने क्या रख दिया? माइनस एच. इसको सॉल्व करोगे जब, तो मोड ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा? प्लस एच. सो माइनस एच माइनस 2h डिवाइडेड बाय माइनस एच, तो क्या बच जाएगा? 2. और राइट हैंड लिमिट अगर चेक करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h f ऑफ h, तो हमारी डेफिनेशन क्या लगेगी? क्योंकि h टेंड्स टू 0 h 0 नहीं है, तो यानी हमारी डेफिनेशन ये लगेंगे. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, h माइनस मोड h बाय h. इस केस में h माइनस h, क्योंकि मोड h क्या हो जाएगा? h. सो h माइनस h 0 हो जाएगा. ये 0 आ गया. तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है बट इक्वल नहीं है. क्लियर?
तो अगर इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूटी किस टाइप का टाइप है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट कर रही है बट इक्वल नहीं है, तो दिस इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करिए आप क्वेश्चंस को, अगर कोई डाउट होता है तो हम डिस्कस करेंगे। कई सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। अगर सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे मोड एक्स है, मोड एक्स बाय एक्स, सो जीरो पर तो फंक्शन की वैल्यू जीरो है, जब जीरो नहीं है तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। क्लियर? तो मोड की डेफिनेशन अगर हम लगाएंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो तो मोड x की वैल्यू क्या जाएगी x, तो x बाय x से 1 होगा, और जब x लेस देन जीरो होगा तो मोड x की वैल्यू होगी माइनस x, सो माइनस x बाय x हो गया माइनस 1। क्लियर? तो x इज लेस देन जीरो तो पर फंक्शन की वैल्यू माइनस 1, x ग्रेटर देन जीरो पर प्लस 1 और जीरो पर जीरो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप कंटिन्यूअस हमें गिवन है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? सो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ माइनस एच होगी, और एफ ऑफ माइनस एच यानी लेस देन जीरो वाला केस होगा तो ये वाली डेफिनेशन लगेगी। सो 1 माइनस कॉस 4 माइनस एच बाय माइनस एच स्क्वायर। इस पर आप सब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस कॉस जीरो बाय जीरो, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगा, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाया, डिफरेंशिएट किया, फिर लगाया, फिर से जीरो आ रहा है तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया। तो आप क्या बनेगा 8। अब राइट हैंड लिमिट जब चेक करेंगे तो जीरो प्लस एच है, तो जीरो प्लस एच पे कौन सी डेफिनेशन काम करेगी? ये वाला काम करेगा, तो ये वाले डेफिनेशन पे लगाया हमने, वैल्यू रखी एस टेंस टू, क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाला केस है तो आपको बोला था कि आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, जब भी स्क्वायर रूट बनेगा और जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो इसको रैशनलाइज किया, फिर सॉल्व किया, तो हमें 8 फिर से मिल रहा है। तो दोनों लिमिट इक्वल है, सो और इक्वल दोनों फाइनाइट मींस फाइनाइट है और इक्वल है। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि अगर f कंटिन्यूअस है तो a की वैल्यू क्या होगी? तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट x पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो, बोथ आर इक्वल, तो अगर कंटिन्यूअस है तो f जीरो के भी इक्वल होगा, तो f जीरो क्या है, a के इक्वल है, यानी वो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। ऐसी कुछ और क्वेश्चंस हैं। cos x टू द पावर cot स्क्वायर x, तो ये x टेंस टू जीरो पर कहां बन रहा है, क्योंकि हमें x इज इक्वल टू जीरो पर चेक करना है। फाइंड लैम्डा इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। तो लिमिट x टेंस टू जीरो fx की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंस टू जीरो cos x cot स्क्वायर x, सो 1 टू द पावर इनफाइनाइट बन रहा है, क्योंकि cos जीरो 1 होता है, cot जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसको सॉल्व किया, यानी पहले हमने इसकी प्रॉपर्टी लगाई, 1 टू द पावर इनफाइनाइट में क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं, लॉग से हमें लिमिट की वैल्यू क्या मिलती है, e टू द पावर gx fx माइनस 1। तो उस प्रॉपर्टी से हमें ये मिला, और इसको सिंप्लीफाई किया तो जीरो बाय जीरो बन रहा है। अब एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, तो डिफरेंशिएट किया ऊपर और नीचे, फिर अप्लाई किया लिमिट, तो माइनस 1/2 आ रहा है, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/2। ऐसी कुछ और क्वेश्चंस हैं। So in the coming lecture we will discuss about the differentiability of a function.